آپ کے سامنے سرکار دو عالم علیہ السلام کی صلوات پڑھ لیا کریں جب سرکار کا محکم مستند موثق حدیث ثقلین کو تلاوت کیا. توجہ فرمائے. حدیث ثقلین، ثقلین یہ بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے. ثقلین کے معنی ہیں، ثقل کہتے ہیں وزن کو. ثقلین برابر کا وزن. غور نہیں فرما رہے. برابر کا وزن وہی بتا سکتا ہے جو وزن جانتا ہے. تو جو فرمائیں میرے ساتھ ساتھ ہو جائیں، زیادہ لمبا نہیں پڑھنا. بالکل وزن وہی بتا سکتا ہے جو حقیقت وزن سے بھی واقف ہو اور میزان سے بھی واقف ہو. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. میزان سے بھی واقف ہو، حقیقت وزن سے بھی واقف ہو. میں دوسری گل کروں، تو نہیں فرما رہے. جو وزن سے بھی واقف ہو، حقیقت وزن سے بھی واقف ہو. رسول وزن کرنے والے ہیں، وزن میں آنے والے نہیں ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ رسول وزن کرنے والے ہیں، وزن میں آنے والے نہیں ہیں. بے شک جو وزن کرنے والا ہے وہ بھی وزنی ہے، لیکن حقیقت میں وزنی وہ ہے جو پلڑے میں آئے گا. رسول ارشاد فرما رہے ہیں. اب جن کا وزن رسول بتائیں گے عدل کے ساتھ بتائیں گے. فرما رہے ہیں انی تارکن، یہ اشروں کا موضوع ہے، مجھے تھوڑے سے وقت میں اسے بیان کرنا ہے. یہ 10 دن پڑھیں پھر جا کے نتیجے نکلتے. سرکار فرماتے ہیں لوگوں انی تارکن، اور غور فرمائے، فیکم الثقلین، لوگوں میں تم میں 2 برابر کی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا. ہائے 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 ہائے، خدا گواہ ہے بہت بڑی بات ہو گئی. حیدری میرے ساتھ ذہن ملا. رسول کا فرمانا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ میں بتا رہی ہے، کوئی پہلے ہے جو ان کو بنانے والی ہے. کوئی ذات ہے جو اسے بنانے والی ہے. وہ بنانے والی ہے، رسول چھوڑنے والا ہے. بنانے کے معنی میں کیا آتا ہے؟ انی جاعلون، اللہ کہہ رہا ہے میں بنانے والا ہوں، اور رسول فرما رہا ہے میں چھوڑنے والا ہوں. معلوم ہوتا ہے بنانا اور چھوڑنا. میں بہت بڑی بات کرنے والا. جو کمال چھوڑنے والے کا ہے وہی کمال بنانے والے کا ہے. نا جو کمال چھوڑنے والے کا ہے وہی کمال بنانے والے کا ہے. یار دیر سے سمجھ آتی ہے. رسول فرما رہے میں دونوں برابر وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اب وزنی چیزیں میں بتا دوں کیا ہے وہ وزنی چیزیں. پہلی وزنی چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اس کے ساتھ دوسری کیا ہے؟ وَإِتْرَتِي اہل بیتی. دوسری اطرت، اطرتی میری اطرت ہے. اہل بیتی میری اہل بیت ہے. دیرہ غازی خان میں لفظ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. دیکھیں رسول نے دونوں کا وزن برابر کر کے کتاب کو نسبت دی اللہ کی طرف اور اطرت کو نسبت دی اپنی طرف، مگر دونوں وزن میں برابر. غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. کتاب کو نسبت دی اللہ کی طرف. کتاب ہے
इतरत है रसूल की, अल्लाह ज़ात है, रसूल वजूद है। जो वजूद में हो के ज़ात के बराबर हो उसी को मुस्तफा कहते हैं। बराबर हो गई या नहीं हो गई? जो निस्बत है दरी हम गल करनी है ना मेरे भाई, जो निस्बत बहुत बड़ी बात है। हाय हाय, मैं यही कह रहा हूँ, जो वजूद रख के ज़ात के बराबर हो उसी को मुस्तफा कहते हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह हैदरी, अल्लाह 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 ज़ात है, रसूल क्या फरमाने वजूद। अब इतरत को किसकी तरफ निस्बत दी? अपनी तरफ। इतरती, मेरी इतरत, किताब अल्लाह की, इतरत मेरी। मालूम है अल्लाह और रसूल का वजन कितना हो गया? वो ज़ात में और ये वजूद में बराबर। इसीलिए सकलैन कहा। अब आप बात को मैं खोल के बयान कर दूं 1 मिनट में। सकलैन, सकलैन कहते हैं बराबर का वजन, जिसकी मिसाल है ज़ोहरैन। हाय हाय, मैं खुश हो गया एक जुमला कहूं, ज़ोहरैन, दोनों बराबर की नमाजें। नमाजें वक्त 2 की हैं, वजन में बराबर है। हाय हाय, अब जुमला कहूं, नमाज भी वजूद है और जोहर और असर दोनों नमाजें हैं मगर वजूद में बराबर, बिल्कुल इसी वजन पर है। हसनैन, देर से समझ आती है। हाय 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 हाय, नाम बदले हैं, कमाल एक है। खुश हो जाए मेरे भाई, खुश हो जाए। हसनैन, ये मैं बहुत बड़ी बात दैरा गाजी खान में वजन की बता के आगे बढ़ता हूँ। हसनैन, इसके आगे है समझना है शहादतैन, 2 गवाहियां। हाय 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 हाय, सही 2 गवाहियां, 2 गवाहियां, 2 गवाह 2 हैं मगर गवाही बराबर है। किस वक्त की बात हो रही है? ऐ रसूल, जो तेरी रिसालत का इनकार करता है उनसे कह दो मेरी रिसालत का पहला गवाह अल्लाह है। चलिए वजन नहीं दिया आपने, वजन नहीं दिया है, नहीं वजन नहीं दिया, खुद कह रहा। कुल कफा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम, जो तेरी रिसालत का इनकार करता है उनसे कह पहली तेरी रिसालत का पहला गवाह अल्लाह है। मैं फिक्र दे के आगे बढ़ता हूं, अल्लाह खुद कह रहा है कुल, कुल मैंने कह, कुल खुद कहता है, यारा खुद कह रहा है। मालूम होता है गवाही देने के लिए खुद आगे आया है, रसूल ने इल्तिजा नहीं की। कुछ नहीं होता। हाय हाय हाय, यहीं से मालूम हुआ रिसालत की रसूल की नहीं है, अल्लाह की है। देखिए रिसालत रसूल की नहीं, अल्लाह की है। अल्लाह ने कुल कह के कहा, कुल कुल। जब इस कुल रिसालत का गवाह अल्लाह है, फिर दूसरा गवाह कौन होना चाहिए? अगर उसका ऐलाने कदीर न हो, कुल रिसालत खत्म। अरे क्या कहने अगर तूने अली की विलायत का ऐलान ना किया, अभी बहस करनी है। डेरा गाजी खान मेरा घर है, ये मेरा आबाई वतन है। मैं हाथ बांध के पूरे डेरा गाजी खान मुल्क के आए हुए लोगों से कहता हूँ, मुझे ये बताएं अल्लाह की रिसालत में है क्या?
रिसालत में, कुल अमल अमाल रिसालत में, कुल अमाल रिसालत में, कुल उसूल रिसालत में, कुल फुरूअ दीन रिसालत में, कुल तौहीद नबूवत इमामत एक तरफ अकेला अली। समझ आई मेरे भाई, समझ आनी भी है मेरे भाई। कुल रिसालतें, कुल दीन एक तरफ, अकेले अली की विलायत एक तरफ। मैं लफ्ज़ कह दूं, जब दीन बगैर अली के मुकम्मल नहीं तो नमाज विलायत के बगैर। सारी रिसालत ये हम सियाने बने ना, सियाने फमा बल्लगता रिसालत, तूने अल्लाह की रिसालत पहुंचाई नहीं है। कि हम पहुंचाई नहीं है को गौर करना सही। ये जो साहिबान फिक्र शुअरा किराम तशरीफ रखते हैं, सही बैठे हैं, पहुंचाई ही नहीं है। अल्लाह पहुंचाई ही कह के, फमा बल्लगता नहीं पहुंचाई तूने रिसालत हो, उसकी रिसालत। अल्लाह की रिसालत पहुंचाई ही नहीं है। तो फिर मैं तेरा गाजी खान में आला ले ऐलान कहता हूं, जो भी मुनकर विलायत अली है उस तक रिसालत पहुंची ही नहीं। समझ नहीं आती भाई। जिसने भी इकरार विलायत अली अलैहिस्सलाम नहीं किया उस तक तो रिसालत पहुंची ही नहीं है। जब रिसालत ही नहीं पहुंची वो मुस्लिम ही नहीं है, तो फिर नमाजें कहाँ गई? समझ आइए थोड़ी देर नहीं। रिसालत नहीं पहुंची, ना पहुंची रिसालत में, कहूं ना पहुंची रिसालत में नमाजें हैं। यार मैं फिक्र दे रहा हूं, ना पहुंची रिसालत में हज है, ना पहुंची रिसालत में बकरे हैं जबाब। हाय 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 कुर्बानियां हो रही है। तो मेरे आंखें की बजाय थोड़ा सा इजाजत दे दे। अब यही सारी नमाजें लेकर जब पहुंचेंगे मैदान हश्र में, हुक्म होगा जन्नत के दरवाजे खोलो, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जब खुलेंगे ये नमाजें लेके दौड़ेंगे उधर, हुक्म होगा रोको, वाकिफूहुम, इनसे अभी सवाल करना है। रोको रोको, वो न जाने दो, रोको। रोका उन्हें जाता है जो मुस्तहिक नहीं होता। हाय 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 हाय, जन्नत का हक नहीं रखता। इन्हें रोको। मुस्तहिक लंबी बात से मैं लंबी बात कर रहा, लंबी हो जाएगी। रोको, वाकिफूहुम इन्नहुम
मसऊलून, इनसे तो अभी सवाल होना। जब सवाल की बात आई आगे बढ़े, नमाजें सामने की, रोजे सामने किए, हज सामने किए, फरमाया ये अमल है, कीमत दो ना, कीमत है विलायत अली। जिनकी रगों में विलायत अली अपना अबी तालिब है, इसी मकाम को गदीर खून का मैदान समझते हुए, अबू ज़र तीनत होते हुए, मिकदार हैसियत होते हुए, सलमान मिजाज होते हुए, मलंग मिजाज होते हुए, बहलोल तबीयत होते हुए, दीवानों की तरह दोनों बाजू बुलंद करके आसमान तक पहुंचाने के लिए अपनी सदाकत खून की गवाही देने की खातिर पूरी ताकत सर्व करके मिल के नाराए हैदरी। समझ आ गई है? ठीक हो गया? रोको, हाय 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 हाय, जन्नत में रोका ही मुनकर विलायत अली जाता। इन्नहुम मसऊलून, इन्नहुम मसऊलून। इनसे सवाल करना, सवाल किसका होगा बाबा? सवाल होगा अन विलायत अली इब्न अबी तालिब। अगर विलायत है, वो मैं लफ्ज़ से घुमा के कहता हूँ और वो आपको आता भी है, कीमत तब किसी शय की दे के वसूल की जाती है जब पहले की सिक्योरिटी जमा की हो। नहीं यार, ये नहीं, ताजर नहीं है आप बैंक से क्या करते हैं? मुआहदा करते हैं, पहले सिक्योरिटी जमा करते हैं बैंक में, फिर बैंक तुम्हें माल देता है, आप पैसे देते हैं, माल वसूल करते हैं। भोले बन गए। पैसे देते हैं, माल वसूल करते हैं। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, सिक्योरिटी हो गई, नमाजें आने लगी, हज आने लगा, ज़कात आने लगी, हाँ सिक्योरिटी तो जमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जमा है, अब माल आने लगा, कीमत देंगे, माल वसूल करेंगे। कीमत है कयामत में विलायत अली इब्न अबी तालिब। फिर नतीजा क्या होगा? अगर विलायत नहीं, माल भी ज़ब्त, सिक्योरिटी भी ज़ब्त। तो खुश हो गए बाबा। शहादतैन, शहादतैन मान ना तैन, दो बराबर की शहादतें। हसनैन, ज़ुहरैन, मगरिबैन, शहादतैन, दोनों बराबर की गवाही है। और गवाही तब होती है जब उसमें अदल हो। अदल नहीं है, गवाही बराबर की नहीं हो। अब अल्लाह कह रहा है रसूल जिसने तेरी रिसालत का इनकार किया, कुल कह दो, कुल। रसूल क्यों कहे? यहीं से नहीं समझ आती, अल्लाह कह भी नहीं सकता तभी तो रसूल से कहलवाता है। अल्लाह कुल कहता है, कुल कहना दलील है, कह नहीं कहता। अच्छा यार यही नहीं समझ, अच्छा यही नहीं समझ आई, कुल कहना किसकी दलील है? खुद कहता होता तो कुल क्यों कहता? अच्छा फिर आखा मैं, अगर अल्लाह खुद कहता होता, आवाज आती, कह सकता होता, कहने के लिए ज़बान चाहिए, कहने के लिए वजूद चाहिए, वो वजूद से मुनज़्ज़ह मुबर्रा है। अली फरमाते हैं अल्लाह कौन नहीं कहता, इरादा करता है, शायद वजूद में आ जाती है। फरमाया अल्लाह ने इरादे से हम 14 को बनाया, आगे कौम हमने कहा
कहने वाले कहो ना। दलील दलील बगैर दलील के नहीं साहिबान इल्म तशरीफ फरमाएं। अल्लाह कौन नहीं कहता। ए सूरह इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यकूल लहु कुन फयकून। जरा तफसीर करें ना इसकी, सही तफसीर करें ना। मैं तफसीर करता हूँ, जिन्होंने तर्जमे किया उनके तर्जमे मेरे पेश नजर है। इन्नमा अमरुहु, अल्लाह का अम्र ये है। अल्लाह अम्र की बात कर रहा है, अल्लाह अल्लाह अपनी अल्लाह होने की बात नहीं कर रहा। अजय नहीं समझ आती भाई। इन्नमा अमरुहु, अल्लाह का अम्र ये है। अम्र यानी वो आमिर है, अम्र की बात कर रहा है। अम्र, अब मैं जल्दी बात सुना दूं। अल्लाह आमिर है, 14 अम्र हैं, हम मामूर हैं। हम मामूर हैं, 14 अम्र हैं। अल्लाह आमिर है, अल्लाह बात कर रहा है अम्र की। या तर्जुमा क्या किया? इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन, जब अल्लाह किसी शय का इरादा करे। यार अल्लाह की तो लफ्ज़ ही नहीं है, अम्रुहु की लफ्ज़ है, अल्लाह के अम्र की लफ्ज़ है। मैं क्या कह रहा हूँ? एक लफ्ज़ मेरी गाल हो गौर ना सुना। अगर अल्लाह कहे मैं अम्र कहता हूँ, फिर अल्लाह के लफ्ज़ में कमाल ही खत्म हो गई। तमाम अस्मा का शम्स कौन है? लंबा ना करे फिर समझ नहीं आएगी, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अल्लाह कह रहा है, अल्लाह इरादा नहीं, ये इरादा इन्नमा अमरुहु, अल्लाह का अम्र ये है। इज़ा अरादा शयअन, जब अल्लाह का अम्र इरादा करता है। अल्लाह नहीं कहता है कौन, वो शायद वजूद में आ जाती है। कौन इमाम कहता है, कौन कौन कहता है? अम्र कहता है। 14 फरमाता है नहनु अम्रुल्लाह, हम अम्र इलाही हैं। सरकार हसन घोड़े पे जा रहे हैं, बैठे हुए घोड़े पे, तशरीफ रखते, हाथ में चाबुक है, चले जा रहे हैं मदीना की गली में। आगे एक माजूर बैठा है, हाथ भी ठीक नहीं है, पाँव से भी माजूर है। इमाम को जब आते हुए अपनी गली में देखा, दिल में कहता है काश आज मेरे हाथ दुरुस्त होते, मैं मुसाफा करता, मैं दस्त यदुल्लाह से अपने हाथ मस करता। आज मेरे पाँव नहीं है, खड़े होके ताजीम करता। इसलिए यहाँ दिल में कहा है, जो दिलों की बातें सुने वही इमाम होता है। जब इमाम ने उसकी गुफ्तगू सुनी, है ये कह रहा, चलते हुए आके उसके सामने घोड़ा रोक के वो चाबुक डाल के कहा, भाई जरा चाबुक उठा कर दे। बात में ना समझ हो जाए, हाथ भी दुरुस्त हो गए, पाँव भी दुरुस्त हो गए या नहीं? कौन कहा? नहीं, हुक्म दिया चाबुक उठा के दे। ओ दुनिया वालों, 14 को पहचानो। अगर इसी घोड़े पर बिला तशबीह सरकार ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, बैठे हुए हूँ, और चाबुक नीचे डाल के कहे भाई जरा चाबुक उठा कर दे, वो कहेगा सही, आप उलिल अम्र नहीं है, मसीह हैं। मसीह के माने हाथ फेरने वाला। पहले घोड़े से उतरे, मेरे हाथों पे हाथ फेरे, मेरे पाँव पे हाथ फेरे। ये फर्क है नबी और इमाम में। शुक्र है बात समझ हाथ फेरे। एक गवाह अल्लाह है। चलो वक्त ज्यादा ना, मुझे आती भी आगे बढ़े। वजन किसे कहते हैं? बराबर तो फेल है ना, कमाल है ना। मेरे भाई बच्चे हैं हमारे, सही तसद्दुक़ है, इनके बेटी हैं, तो मैं हम नाम है जी, मैं तो कह सकता हूँ ना। वजन 5 किलो कागज ले, उस पे पूरा कुरान लिखे, लिख लिया ना, अब उसका वजन करे, वही 5 किलो।
लगता है ऐसे कभी हुआ नहीं। कुरान आपने लिख लिया, सही लिखा, अब जो वजन करेंगे कितना वजन? 5 किलो। वो 5 किलो तो कागज का वजन है। 5 किलो कागज लिए थे या नहीं? ये जो तोला है ये 5 किलो तो कागज का वजन है। कुरान का वजन कहाँ गया? आखिर तक मेरी बात समाप्त फरमाएं। अब जो कागज तोले वो ही 5 किलो थे। जब 5 किलो थे, देर गाजी खान में मैं तारीखी लफ्ज कहना चाहता हूँ, अब जो तोला वो तो कागजों का वजन है 5 किलो। कुरान का वजन कहाँ गया? अब मान लो कि कुरान का वजन रूहानी होता है, मादी नहीं होता। हाय हाय हाय, कुरान का वजन रूहानी है, मादी नहीं होता, मादी नहीं होता। जो इस कुरान के वजन के बराबर हो वो नुत्फू से नहीं बनता, इरादों से बनता। और नहीं फरमा रहे तो बहुत बड़ी बात है। समझ नहीं आई? बड़ी गल है सही, नाम अहले दुनिया दौलत यहाँ भी मिल जाती है। हाय 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 हाय। कागज का वजन रूहानी। लंबी बातें मुझे आती है, सही आती है, अब तो ज्यादा बहस नहीं करनी। अब देखना है हमने वजन, वजन देखना है, ठीक है? कुरान तू बता तेरा वजन कितना है? जहां वजन नहीं है कुरान से पूछते हैं तू बता तेरा वजन कितना है। जब शकलैन तो तभी सही होगी ना कि तू वजन बता ना अपना। ए कुरान अपना वजन बता, फौरन आयत आती है, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन रायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। कुछ जल्दी नहीं चला जा मेरा पुत्र। लो अंज़लना हाज़ल कुरान, अगर हम, लो मुतवक्के के लिए, तवक्को के लिए आता है, मुतवक्किल वुकू के लिए आता है। लो अगर हम अंज़लना हाज़ल कुरान, अगर हम कुरान को नाज़िल करते अला जबलिन, पहाड़ पर, कौन नहीं खुश होते भाई? अजय नहीं खुश होते हैं। अगर हम कुरान को पहाड़ पर नाज़िल करते, लराएतहू, हबीब तू खुद देखता। किसी और का देखना हम पसंद ही नहीं करते, हमारे कमाल का मुशाहदा तू कर। ला ताकीद के लिए, उस फेल की ताकीद के लिए लाम जबर वाला आया, ये फेल की ताकीद के लिए आता है। लराएतहू, तू खुद आंखों से देखेगा, खाशिअन, के पहाड़ ना रेजा रेजा नहीं, खाशिअन लरज रहा होगा। पहला वजन है लरेजरा, खाशिअन। खुशू किसे कहते हैं भला? अच्छा, खौफ किसे कहते हैं? डरते होंदा कि यार। अच्छा अच्छा मैं बताता हूँ, ज्यादा नहीं, एक ही लफ्ज बता दे, खुश हो जाए। खौफ ये होता है कि किसी को मालूम करने से पहले जो आता है उसे खौफ कहते हैं। मालूम करने से पहले जो होता है उसे खौफ कहते हैं। रात को मैं अकेले डेरा गाजी खान आया, इसी गली से अकेले गुजर रहा था रात को, सही तो आए नहीं ना लेने के लिए। जब कोई लेने ना आए फिर खौफ भी होता है। चूंकि मैं अकेला यहाँ से गुजर रहा था, कोई आदमी नहीं है। चूंकि मैं लाहौर शहर में रहता हूँ, मैंने जरा देखा दूर से कोई काली शय खड़ी है। बस काली शय नहीं थी, पसीने पसीने। हाय हाय, मौलवी पूरा गया।
हाय हाय हाय, डर गया सही, नहीं डरा। पसीने आना ही तो डर लगना है। अभी बयान करते हैं कोहेतूर पे कितना पसीना है। मुझे डर लगा, डर रहा हूँ, काली बला, अल्लाह जाने क्या बला है, डर रहा हूँ, लेकिन दिल में हिम्मत है गुजरना भी तो यहीं से है, इधर से रास्ता नहीं है। जो ही मैं करीब गया तो देखा भैंस खड़ी थी। डर खाता मालूम होने से पहले जो होता है वो होता है खौफ। दूसरा खौफ होता है किसी के कमाल को समझ के डरना। जहां तक मेरी आवाज आ रही है, बड़ी तहकीक और जिम्मेदारी से मैं जुमला कहना चाहता हूं कि कोहे तूर पर जनाबे मूसा खौफ से बेहोश नहीं हुए। अच्छा केड़ा कमाल ना ना मैं पढ़ाता हूँ खुद ही। जनाब मूसा कोहे तूर पे खौफ से बेहोश नहीं हुए। और फरमाए से एक पल्ले बांध रहे जो मैं जुमला कहने लगा। देर अली खान में पता लगेगा अली क्या है और मूसा क्या। जनाबे मूसा खौफ से बेहोश नहीं हुआ। खौफ तो औलिया अल्लाह पे आता नहीं है। जनाबे मूसा खौफ में नहीं, हैरत में बेहोश हुए। हैरत में, क्या हैरत कि मैं और सामने अली। हाय 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 हाय, मैं कहा और अली का सामना कहा। ज्यादा लंबा ना हो जाओ बस सही बस सही बस। हैरत से हैरत जब आरिफ बनते हैं, आरिफ बनते, मजालिस में आरिफ बैठे होते, खुदा गवाह, खुदा की कसम मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, मुझे खुदा की मैं आरिफ शाह जी, खुदा की कसम मैं कहता हूँ। मैंने इसी आरिफीन के एक मजमे में मैंने हदीस पाक पढ़ी। रसूल ने फरमाया अना वाली में नूर वाहिद। मैंने कहा ये रसूल ने फरमाया मैं और अली एक नूर हैं। ये मैंने ये मिसाल दी। जो ही मजलिस खत्म हुई, इत्तेफाक से वो मेरे बहुत मेहरबान थे, आरिफ मेरे सामने आए, कहने लगे हदीस सही पढ़ी है, मिसाल सही नहीं दी। और नहीं फरमा रहे आप। आरिफ मुझे कहने सही, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, क्या मिसाल आपने हदीस सही पढ़ी है, मैं जाओ मेरे पुत्र से मिसाल सीख ली, लेकिन ये जो आपने उंगलियां मिलाई हैं, एक देखिए एक छोटी है एक बड़ी, खुश नहीं होते? ये जो मिसाल दी है मिसाल सही नहीं है, हदीस सही है। मैंने कहा सही, मैं सही मिसाल कैसे दूं? कहा जब भी कहो, रसूल ने फरमाया मैं और अली एक नूर हैं, तो दोनों उंगलियां मिला दिया करो। हाय 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 हाय। अगर कुरान पहाड़ों पे नाजिल होता तो टुकड़े टुकड़े हो जाता। ओए की हो गया, की हो गया? अच्छा ये जहाँ बैठे हैं जमीन पे कितना वजन है? पूरे शहर का वजन है या नहीं? है या नहीं? लंबी ना करूं मैं, है ना? पहाड़ों का वजन है ना? लेकिन अगर ये कुरान हम पहाड़ों पे, जो पहाड़ जमीन के ऊपर है, टुकड़े टुकड़े हो जाते, इसको समझाने दलील बनाने के लिए कोहे तूर पर जनाबे अली ने 70,000 तजल्लियाते नूरानिया में से जरा सा नूर फेंका। मूसा बेहोश, पहाड़ टुकड़े टुकड़े, 70 आदमी जो चुन के ले गए थे नीचे खड़े थे, जल के खाकिस्तान हो गए। क्या तजल्ली एक, असर 3। तजल्ली कितनी है? एक। असर कितने हो गए? 3। 70 आदमी जल गए,
पहाड़ टुकड़े हो गया, जनाब मूसा बेहोश हो गए। तब मैं अपनी जबान में फलसफे मंतिक में से यूं कहूं, देखिए जनाब मूसा का बेहोश होना बराबर है पहाड़ के टुकड़े टुकड़े होने के। तुम भोले हो जाओ। जनाब मूसा का बेहोश हो जाना बराबर है पहाड़ के टुकड़े टुकड़े होने के, और पहाड़ का टुकड़े टुकड़े होना बराबर है 70 आदमियों के जल के खाकिस्तान हो जाने के। अगर कोई शय जनाबे देखे पहाड़ पे उतरती, वो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए, अगर वही शय मूसा पे उतरी तो मूसा बेहोश हो जाएंगे। अगर उम्मती पे उतरी वो जल जाएंगे। नहीं समझ आती भाई? जनाबे मूसा पे उतरी बेहोश हो जाएंगे, पहाड़ों पे उतरी टुकड़े हो जाएंगे, उम्मती पे उतरी जल जाएंगे। मालूम हो गया कुरान अगर जनाबे मूसा पे उतरता मूसा बेहोश हो जाते। मालूम हो उन पे कुरान उतरे जो मूसा से अफजल हो। और मेरी दुनिया जनाबे मूसा जैसा न हो, वरना बेहोश हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बेहोश। जनाबे मूसा अगर बेहोश हो गए तो तबलीग कौन करेगा? मालूम है कुरान जनाबे मूसा पे नहीं उतर सकता। लफ्ज़ कहूं अगर संभल के सुनना है, अगर कुरान उम्मती पे उतरता तो वो जल जाते। मालूम है क्या कयामत तक के लिए कुरान उम्मती पे उतर ही नहीं सकता। बस ही खत्म। बस सरकार दो आलम बैठे, साहब किराम बैठे हैं। हाय एक शख्स भागता हुआ आया। मौला एक बहुत बड़ा देव जिसका कद 31 गज है, वो मदीने में दाखिल हो गया। लोग डर रहे हैं। जब सुना तो कुछ डर मस्जिद में भी फैल गया। खुदा का वह लफ्ज़ लिखी, सुनने से भी डर फैल गए। देखा नहीं अभी लिखा हुआ है। सरकार ने फरमाया घबराओ नहीं, वो मेरे पास ही आ रहा है, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मेरे पास आ रहे। तवज्जो फरमाए मेरे भाई, तवज्जो फरमाए। इतने में वो आया और आके उसने सर कदमों पे सरकार के जमीन पे रखा, खड़े होकर सलाम किया। क्या देखा लोगों ने कि एक देव है जिसका कद 31 गज लंबा है, दांत उसके बाहर निकले हुए हैं, बाल हैं इतने तक, और उसके इस रुखसार से खून बह रहा है, पीप और खून बह रहा है, और उसके दोनों हाथ खजूर के पत्ते से बंधे हुए। अजय नहीं खुश हो दे भाई। अगर किताब फजाइल मुर्तज़वी है आपके पास तो उसमें लिखा, मेरे पास है। उसने आके कहा मौला मैं बहुत दुखी हूँ। अब मेहरबानी फरमाए। सरकार ने फरमाया बयान करो क्या बात है। सरकार ये सुनाए और ना सही सरकार, मैं जनाबे आदम से 30,000 साल पहले अल्लाह ने मुझे पैदा किया। जनाबे आदम से भी 30,000 साल पहले पैदा किया। मैं बड़ा सरकश था, मेरे दिल में रहम क्या ही नहीं। मैंने बहुत से ऐसी बेरहमी में बहुत से बच्चों को, आदमियों को माजूर किया। ये माजूर ज्यादा इन्हीं की वजह से होते। हाँ, ये जो माजूर घर में बच्चे इत्तेफाकिया हो जाते हैं, ख्याल किया करो सही और इधर पढ़ला नहीं मुझे माजूर। मैंने एक दिन सरकार से कहता मौला, मैंने एक दिन देखा एक जीशान इंसान जो ही मेरे आगे से गुजरा, मेरे दिल में चूंकि रहम नहीं था, हसद हुआ, क्यों ना मैं इस पे हमला करूं। मौला मैं आगे बढ़ा हमला करने के लिए, सुनेंगे उस जवान ने मुझे तमाचा मारा। बस तमाचे का लगना था, मैं बेखुद हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ। तमाचे से ये खून उसी दिन से बह रहा है, ये पीप उसी दिन से बह रही है। और उसने खजूर का पत्ता लेके मेरे दोनों हाथ बांध के गायब हो गया। गायब हो गया। मैं घर आया, सारे जिन इकट्ठे हो गए, छुरियां तलवारें लेके हमने उन पत्तों को काटना चाहा, ना वो कटी ना खुली। खुश होते भी हो या नहीं? वो पत्ते ना कटे ना खुले।
इनका मैंने बड़ा इलाज किया, ठीक नहीं हुए, ठीक नहीं हुए। बड़ी कोशिश, यहाँ तक कि 30,000 साल गुजरने के बाद इसी तरह कैफियत जनाब आदम अलैहिस्सलाम आए। मैं जनाब आदम की खिदमत में आया, मौला आप नबी हैं, मेरे हाथ खोल दे, इसे काट दे। मौला तेरी नबूवत की कसम, जनाब आदम ने नबूवत का पूरा जोर लगाया, ना पत्ता कटा ना खुला। बाबा खुश हो। जनाब नूह आए, जनाब नूह ने जोर लगाया, नहीं खुला। जनाब सुलेमान इब्न दाऊद नबी आए, उनके पास में गया, उन्होंने उनके साथ जो जिन शिन सारे इकट्ठे थे, बड़ा जोर लगाया, नहीं जब खुला तो वही आई, सुलेमान मुफ्त की मशक्कत न करो, इसे वही खोलेगा जिसने बांधा है। खुश हो जाए मेरे भाई, जिसने वही खोलेगा जिसने बांधा है। सरकार अब मैं आपके पास आया हूं, बोला आप मेरी मदद फरमाए। इतना कहना था, 2 आदमी नाम लिखे, नाम नहीं लेना। उठे छुरी लेके, दोनों उठे, काटना चाहते हैं कटी नहीं, खोलना चाहते हैं खुली नहीं। खुश हो जाए मैं जुमला कहूं, जो ही वो जाके बैठे बगैर खोले कटे, बस जनाब अली मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और उसका दाखिल होना था। जिन कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, अजरनी या रसूल अल्लाह, मौला मुझे इससे पनाह में ले आए, मौला पनाह में ले आए। सरकार ने फरमाया हुआ क्या तुझे? कहता है यही तो था। खुश हो गए सही, यही तो था। है जब जनाब उसने यार मौला ने बताया शर नहीं। सरकार अमीर मोमिनीन जो है रसूल खुदा ने खड़े होकर ताजीम करके बस जुमला कहा, जुमला कहा, अली इसके हाथ खोल दो। अली अलैहिस्सलाम ने लबू को हरकत दी और पत्ता खोल गया, बस खुला, वो सजदे में चला गया। जनाब अली ने फरमाया मैंने तुम्हें आजाद किया, घर चला जाओ। कहने लगा ये जुमला मैं जरूर सुनाता हूँ, मौला 36,000 साल के बाद आज ही तो हक मिला है, मुझ पे लानत है, हक भी देखो और घर चला जाओ। मौला की खिदमत